In the last lecture, we had learned about chapter number first, distributional maps. And in this part of the chapter, we had learned about the dot map, then choropleth map, and isopleth maps. Now we are going to learn the next part of this chapter, and the next point is try this. Okay. Now we will prepare a map using dot method. Carry out the following activities. See the map of Nandurbar given in figure 1.6 carefully. Draw it on another paper or teaching paper, tracing paper along with its taluka and district boundaries. Now see the population table given along the map. On the basis of statistical data, decide the value of the dot considering the highest and the lowest. Okay, now we should have to do something now. The practical part is going on here. And what is the practical part? What is the activity is here? See the map of Nandurbar which is given in figure 1.6 and draw it on another paper or tracing paper along with its taluka. तो हमारे यहाँ पे फिगर में 1.6 ये फिगर में नंदुरबार जो तालुका है उसका मतलब मैप दिया गया है. उस मैप को आपको दूसरे पेपर पे बनाना है या ट्रेसिंग पेपर पे उसे बना लो. तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट उसके सभी के सभी तालुकास वहां पे दिए हुए हैं एंड डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज भी वहां पे दी हुई है. नाउ सी द पॉपुलेशन टेबल गिवन अलोंग द मैप. मैप के साथ एक पॉपुलेशन टेबल भी वहां पे बताया गया है. ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटिस्टिकल डाटा मतलब ये स्टेटिस्टिकल डाटा हमारे पास है और उसके बेस के ऊपर डिसाइड द वैल्यू ऑफ द डॉट्स कंसिडर द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट. तो आपको डॉट की वैल्यू वहां पे कंसिडर करनी है हाईएस्ट एंड lowest. Now let's see figure 1.6. Where is the 1.6 figure? Here. Okay. Now you can see the figure 1.6 there. That is the district of Nandurbar there with the different talukas which are in Nandurbar. Okay. Nandurbar district is here. First of all, can you tell me which type of method is used for this making this map? Which type of method is used here? Colors are used. No, tints are seen here in the map for giving information, for saying the value there. Okay. Then this is the choropleth method. This is the choropleth method and the values are also there. Okay. Very high, then moderate and low, peak, ghat and river. All the symbols are there. Height of the region is given in the index and other symbols are also there. The blue symbol which indicate lake, reservoir and such a type of symbol is there. That means the dark circle is there with the whole. It is district headquarter. Then another small dark spot is there, that is taluka headquarter, and the circle is there which is showing other. Then the dotted line showing taluka boundaries, then two lines are showing the national highways and this pink line is showing the other highways. Where is the statistical data? We are seeing here the population statistical data which is in the next page. Okay, we are going to next page. Here we are seeing the statistical data. Okay, serial number, talukas are there and rural population 2011 की सेंसस की इंफॉर्मेशन टोटल दी गई है. ओके, द नेम ऑफ द तालुकाज आर देयर हियर. Number 1 Akkalkuwa is there and the population is 2,15,974 is here. Then Akrani, then Taloda, then Shahada, Nandurbar and Nawapur, and such a type of statistical information is here. Now the next information is there, value of population. For example, one dot is equal to 10,000 people. One dot is equal to 10,000 people. आप मैप में वहां पे एक डॉट दोगे तो उसका मतलब वहां पे क्या रहेगा 10,000 people. So that you can decide how many dots to be given to each sub administrative units.
तो सब administrative units means the talukas are there. No, we are seeing the talukas here. Okay, total Amravati district is there. Then Akrani range we can see here. Then Dadgaon we can see here. Then the plain Akola we can see here. Akkalkuwa we can see here. Then Taloda, है ना, Shahade, such a type of talukas we are seeing here, and we should have to give the dots there in the map for making the dot method map, and statistical data is here. Okay, then to draw dots of the uniform size, take a ball pen refill, choose the black and end of the refill with cotton. ओके, तो आपको वहां पे बॉल पेन का यूज करना है. ओके, चूज द बैक एंड ऑफ द रिफिल विथ कॉटन. तो आपको क्या करना है, एक कॉटन के साथ में रिफिल की जो बैक पॉइंट है, बैक साइड है, उसे यूज करना है. प्रेस द एंड ऑन द स्टैम्प पैड एंड ड्रॉ द इम्प्रिंट ऑफ द डॉट वेर एवर रिक्वायर. जहां पे आपको डॉट देने हैं, तो डॉट देने की जो मेथड है वो किस तरह से रहेगी, यू शुड हैव टू यूज द रिफिल आपको लेनी है. द बैक साइड पॉइंट यू शुड हैव टू यूज दैट. देन द इंक पैड इज देयर विच इज यूज फॉर द स्टैम्प्स देयर. नो, then you should have to stamp the refill back point on the ink pad and put the dot wherever you want to give it. Okay, then while placing the dots, consider the physiography, water sources, road, rail, taluka and district headquarters as shown. तो जब आप प्लेस वहां पे दोगे तो वहां पे कंसिडर करना है फिजियोग्राफी, वाटर सोर्सेस, देन roads, rail, talukas, no, all these things, then district headquarters जैसे कि वहां पे दिए गए हैं, वो सारे आपको कंसिडर करने हैं. नाउ इन द मैप इन फिगर 1.6, ये 1.6 के मैप में जो भी सारी चीजें दी है वो आपको वहां पे अच्छी तरह से समझ लेनी है. कंपेयर योर डॉट मैप विथ अदर स्टूडेंट्स एंड अरेंज अ डिस्कशन इन द क्लास. तो दूसरे भी स्टूडेंट ये मैप बनाएंगे, तो दूसरों को मैप देख करके हमें एक डिस्कशन वहाँ पे अरेंज करना है, और उस डिस्कशन से ज़्यादा इंफॉर्मेशन इस डॉट मेथड मैप की आपको वहाँ पे आने वाली है. नाउ समथिंग इन द बॉक्स. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द इंफॉर्मेशन ऑफ द box is there. Geographical field visit. Okay, the information is about the geographical field visit. This part is also important. Okay, the question will be come for the test there. Okay, or the exam there. Then field visit is an important study method in geography. Geography की एक important ऐसी study method है जो है field visit. Geographical concepts and elements can be directly experienced through field visit. अगर हमें geographical concept और वहाँ की जो छोटी मोटी चीजें हैं उन्हें अगर experience करना है तो field visit बहुत ही important thing है. Field visit are extremely useful for understanding the correlation between human and environment. What is the relation? What is the correlation of human being and environment? We can experience it with the field visit very well. Okay, that's why field visit is the important for the study of geography. Preparation for field visit. What will be the preparation for field visit? If you want to go for the field visit, then what should we do? What should we have to carry for the field visit, or how we should have to prepare for the field visit? All these things are given here. Before going to the field visit, decide the place and the purpose of visit. तो सबसे पहले जहाँ पे फील्ड विजिट के लिए हम जा रहे हैं उसका पर्पस हमें डिसाइड करना है कि कौन सी इंफॉर्मेशन उस जगह से हमें लेनी है. द एलिमेंट विच विल बी ऑब्जर्व इन द फील्ड विजिट शुड बी डिसाइडेड. तो फील्ड विजिट के जो भी सारे एलिमेंट्स हैं, है ना, जो भी सारे कंपोनेंट्स है, जो भी सारे पॉइंट्स है, वो आपको ऑब्जर्व करने होंगे. स्टडी द लोकेशन मैप एंड रूट मैप ऑफ द प्लेस टू बी विजिटेड. तो आपको एक मैप की मतलब वहां पे स्टडी करनी होगी और मैप के हिसाब से रूट की स्टडी करो और जिस प्लेस को विजिट कर रहे हो उस प्लेस के बारे में मैप से जानकारी लेनी है. डिस्टेंस, देन ट्रांसपोर्ट रूट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ड्यूरेशन टू द फील्ड विजिट शुड बी प्लान्ड अहेड. और
आप उस मैप के जरिए कौन सी प्लानिंग वहां पे कर सकते हो, तो डिस्टेंस, जहां पे आप रहते हो वो पॉइंट, ओके, और जहां पे फील्ड विजिट के लिए जाने वाले हो वो डिस्टेंस आपको मैप के जरिए समझ में आएगा। देन ट्रांसपोर्ट रूट, वहां तक जाने के लिए कौन से रूट रास्ते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब कौन सी चीजें, कौन से व्हीकल्स वहां पे जा सकते हैं। मे बी बस, देन ट्रेन, देन यू कैन go with the private vehicle, rickshaw, and other vehicles are also there. Okay, then of the field visit should be planned ahead. तो इसके जरिए फील्ड विजिट को हम प्लान कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ टीचर्स, स्टूडेंट्स शुड प्रिपेयर अ क्वेश्चनरी। टीचर की हेल्प से आपको एक क्वेश्चनरी वहां पे बनानी है। दैट मीन्स द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, है ना। और किस तरह के क्वेश्चंस वहां पे बनाओगे, जिस जगह को, जिस पर्पज के लिए आप विजिट कर रहे हो, है ना, तो उसके रिलेटेड जो भी सारे क्वेश्चंस हैं वो टीचर्स से मिलकर या टीचर्स के साथ बैठकर उसकी क्वेश्चनरी आपको बनानी है। ओके, द नाउ नेक्स्ट पेज इज देयर एंड इन दैट पेज वी कैन सी हियर द सिलेक्शन ऑफ द स्टडी एरिया। ओके, द सिलेक्शन ऑफ द स्टडी एरिया इज हियर। नाउ let's see what is the selection of study area. Geographical field visit is organized for study of various elements. तो geographical field जो है वो किस लिए ऑर्गेनाइज की जाती है, अलग अलग ऐसे एलिमेंट्स की स्टडी करने के लिए। दैट मीन्स फिजिकल लैंडफॉर्म। व्हाट इज मीन बाय फिजिकल लैंडफॉर्म, we cannot see the same type of land everywhere. Okay, sometime we see the hilly part, sometime we see the rocky part, sometime we see the sandy part, sometime we see uh, the valley part, then forest part. No, such a type of parts are called the physical, what the physical landforms. Then river banks, you know that very well. What is river banks? The edge of river, it is called river banks. Then dams, coastal area, tourist sites, then offices or museum related to the geographical elements, villages, forest area, etc. Element should be selected after studying the local condition and necessary permission letter have to be obtained. तो ये सारी चीजें जो है वो ज्योग्राफी की स्टडी के लिए आप सिलेक्ट वहां पे कर सकते हो। मतलब ये सिलेक्शन है ना, कौन से एरिया का स्टडी करना है उसका सिलेक्शन आप इस तरह से कर सकते हो। लेकिन उसके पहले सबसे जरूरी चीज क्या है कि जिस प्लेस को आप विजिट कर रहे हो उस प्लेस के जो ऑथोराइज पर्सन है उनकी परमिशन लेना, परमिशन लेटर। डोंट फॉरगेट अबाउट द परमिशन लेटर ऑफ द फील्ड विजिट। देन फॉर अ फील्ड विजिट you should carry a notebook. Some things we should have to carry with you for the field visit which are necessary for you. Then which things are there? Notebook, then specimens, questionnaire, pen, pencil, scale, tape, compass. Which type of compass is there? What is the function of compass? Can you tell me? Compass to show the direction. which which direction shows in the compass? North and south. Okay, north and south. Such a type of compass you should have to bring with you while you are going for the field visit. A bag for collection samples, एक बैग आपको साथ में लेनी है सैंपल्स के कलेक्शन के लिए। मैप्स, कैमरा, all these things you should have to need for the field visit. Okay, then precautions to be taken during the field visit. आप फील्ड विजिट को जा रहे हो तो कुछ प्रिकॉशंस भी लेना जरूरी है। कौन से प्रिकॉशन लोगे? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एंश्योर सेफ्टी ऑफ आवर सेल्फ। किसी भी फील्ड विजिट पे जाने के वक्त हमें हमारी सेफ्टी के बारे में वहां पे जान लेना चाहिए। इफ वी विजिट ऑन अ हिली प्लेस और द रिवर प्लेस और द बिग वाटर बॉडीज आर देयर, द डेंजरस प्लेसेस आर देयर, देन वी शुड हैव टू थिंक अबाउट द security of ourselves during the field visit and others during the field visit. दूसरों की भी सिक्योरिटी के बारे में, सिर्फ खुद के बारे में मत सोचो। You should obey the instruction given by the teachers. जो भी टीचर्स ने आपको इंस्ट्रक्शन दिए हैं उन्हें ओबे करना है, उनका पालन करना है। You should not go to unknown remote places alone. यहाँ वहां आपको उस फील्ड विजिट की जगह पे घूमना नहीं है, जो अननोन प्लेसेस है आपके लिए वहां पे जाना नहीं चाहिए। ड्यूरिंग फील्ड विजिट यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड
द लोकल सर्कमटेंसेस बाय कन्वर्सिंग विद द लोकल पीपल। तो फील्ड विजिट के दौरान आपको और क्या करना है कि जो लोकल पीपल है वहां पे उनके साथ कन्वर्सेशन करना है, और वहां की जो सर्कमटेंसेस है, दैट मीन्स द सिचुएशन ऑफ द पर्टिकुलर एरिया, उस पर्टिकुलर एरिया की जो सिचुएशन है, सर्कमटेंसेस है, वो जान लेने लोगों से, है ना, कि यहाँ पे मतलब डेंजरस प्लेसेस कौन से है, अच्छे प्लेसेस कौन से हैं, उनकी इंफॉर्मेशन थोड़ी सी वहां पे लेनी है। यू शुड ऑल्सो एंश्योर दैट यू डू नॉट हार्म द एनवायरमेंट इन एनी वे ड्यूरिंग योर फील्ड विजिट। आपके फील्ड विजिट के दौरान आपकी तरफ से एनवायरमेंट को किसी भी तरह की हार्म नहीं होनी चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। यू शुड ऑलवेज कीप फर्स्ट एड बॉक्स विथ यू फॉर इमरजेंसी सर्कमटेंसेस। तो कुछ इमरजेंसी सर्कमटेंसेस वहां पे हो जाते हैं, है ना, चोट लग जाती है, कुछ हो जाता है, तो उसके लिए आपको फर्स्ट एड बॉक्स साथ में रखना है। देन रिपोर्ट राइटिंग, द नेक्स्ट पॉइंट इज देयर फॉर द फील्ड विजिट, रिपोर्ट राइटिंग। तो रिपोर्ट राइटिंग में क्या बताया गया है? रिपोर्ट राइटिंग, द फील्ड रिपोर्ट शुड बी रिटन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन आफ्टर द फील्ड विजिट कंप्लीटेड। फील्ड विजिट कंप्लीट होने के बाद जो भी सारी इंफॉर्मेशन आपने उस फील्ड की, जहां पे विजिट किया, उस जगह की जो भी सारी इंफॉर्मेशन ली है, उसका रिपोर्ट बनाना है। यूज द फॉलोइंग इश्यू टू मेक अ रिपोर्ट। तो रिपोर्ट बनाने के लिए आपको क्या क्या ध्यान में रखना है? एड फोटोग्राफ्स वेर एवर नेसेसरी, जहां पे जरूरी है वहां पे आपको रिपोर्ट में फोटोग्राफ्स को भी ऐड करना है। देन लोकेशन, लोकेशन वहां पे लिखना है आपको फील्ड विजिट के रिपोर्ट में। वहां पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन, द फर्स्ट थिंग इज देयर, दैट इज इंट्रोडक्शन। ओके, व्हाट इज इंट्रोडक्शन? अबाउट द प्लेस वेयर वी विजिट, ओके, फॉर द स्टडी, जोग्राफिकल स्टडी के लिए जहां पे हमने विजिट किया है उसका इंट्रोडक्शन लिखो। देन लोकेशन मैप एंड रूट मैप, लोकेशन मैप और रूट मैप को वहां पे मेंशन करो। देन फिजियोग्राफी, आई टोल्ड यू अबाउट द फिजियोग्राफी, व्हाट इज फिजियोग्राफी, उसके बारे में लिखो। देन क्लाइमेट, पॉपुलेशन के बारे में लिखो। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम एंड मेजर्स, है ना, तो वहां पे किस तरह के एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है उसके बारे में, उसके मेजर्स के बारे में लिखना है। देन लैंड यूटिलाइजेशन, व्हाट इज द यूज ऑफ द लैंड, व्हाट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ द लैंड, यू शुड हैव टू मेंशन इन योर report writing. Then in the last you should have to write the conclusion, no, the ending line you should have to write there। conclusion भी लिखना है कि आपने फील्ड विजिट करने पे आपको किस तरह का एक्सपीरियंस आया और किस तरह की इंफॉर्मेशन आपने वहां पे कलेक्ट की है, वो कंक्लूजन आपको लिखना है। all these things were necessary for the field visit and I think that our chapter is over here।